விடைபெற விரும்புகின்றேன். மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் தெரியுமா? 10 வருடம் வேலை செய்கின்றான், 15,000 சம்பளத்திற்காக. அவன் குடும்பத்திற்கு அந்த சம்பளம் பத்துமா? கேசூல் என்ற ஒரு முத்திரை பதித்து வைத்து உன் அரசியல் நாடகத்தில் எல்லோரையும் கேசூலாக செய்துவிட்டு நாம் எல்லோருக்கும் அதை செய்து விட்டோம். அந்த கட்சி காங்கிரஸ் இருந்தாலும் அந்த நிலைமைதான், பிஜேபியாக இருந்தாலும் அந்த நிலைமைதான். யாரும் நம்மளுக்கு எதுவும் செய்ய போவதில்லை. இதுதான் உண்மை. அவர்கள் அரசியல் லாபத்திற்காக அங்கே இங்கே இருக்கின்ற அவர்கள் லாபத்தை விட என் மக்களை அந்த இடத்துல ஒன்று சேர்த்துட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்களோட சேர்ந்துதான் நம்மள இருக்கிற அரசியல் தந்தைகளை வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறோம். என் மக்கள் என்ன பண்ணலாம்? 15,000 ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என்ன செய்ய முடியும்? இன்றைய காலகட்டங்களில் விலைவாசி உயர்ந்து விட்டது. வியாபார பெருங்குடி மக்களே, உங்களிடம் தான் இந்த கோரிக்கையை நான் வைக்கின்றேன். விலைவாசி உயர்ந்து விட்டது. பள்ளிகளிலே அவனுடைய தலைமுறையை படிக்க வைக்க வேண்டும். வருங்கால சந்ததிகளுக்கு அவன் கல்வி அறிவை ஊட்டிட வேண்டும். 15,000 முடியுமா? நீ கொடுக்கின்ற கேசூல் மசூர் என்ற ஒரு 22,000 இலக்கத்தின் சொல்வது 24,000 அவனுக்கு முடியுமா? எத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த ஒரே தொகையை கொடுத்து எங்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பாய்? அவனுடைய குடும்பத்திற்காக அவன் நல்லா இருக்க வேண்டிய எண்ணத்தோடு இல்ல, அவனுடைய தலைமுறை வருங்காலங்களில் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இன்று வீதியிலே இறங்கி போராடுகிறார். இதை ஏன் உங்கள் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு தெரியவில்லை? ஏன் தெரியவில்லை? கேட்பவர்கள் எவரும் இல்லை. இனிமேல் கேட்பவர்கள் யாரும் இல்லாது என்று எவரும் நினைத்து விடாதீர்கள். நாங்கள் இருக்கின்றோம். நாங்கள் ஏன் ராஜ்ய கர்மச்சாரி சங்கம் என்ற ஒரு சங்கம் இருக்கிறது, பிஎம்எஸ் என்ற ஒரு சங்கம் இருக்கிறது, நகர்பாலிகா சொஸ்தா கர்மச்சாரி என்ற ஒரு சங்கம் இருக்கிறது. இதனால் விட்டுவிட வேண்டாம். நாங்கள் உங்களை எவனையும் தவிர்ப்பதாக நினைக்கவில்லை. என் மக்களே, ஒன்றுதான் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அன்றும் என் மக்களின் உயிரோ பல ஆண்டு, இன்றோ என் மக்களின் உயிரோ சில ஆண்டு, நாளை என் மக்களின் உயிரோ குறுகிய ஆண்டு. இதற்கு இந்த நகராட்சியே முழுமையான சான்று. இதை மாற்ற வேண்டும். வரும் காலங்களில் துப்புரவு பணியாளருக்கு, தூய்மை பணியாளருக்கு ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு ஏற்பட்டால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற எல்லாத்தையும் கொடு. நிரந்தர பணியாளனாய் ஆக்கு. 10 வருடம் பணி செய்தவனுக்கு 1/3 என்ற ஒரு முத்திரை கொடு. பணி உயர்த்தி பண வருவாயை கூட்டு. அவனுக்கு மருத்துவ வசதியை கொடு. அவன் வீதியிலே ஜாடு அடிப்பதற்கு அவனுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை கொடு. அவனுக்கு போனஸ் என்ற 10 வருஷம் பயணித்தால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற போனஸையும் கொடு. இதை நீ கொடுக்க மறுத்தால் வரும் காலங்களில் இதை விட பெரிய ஒரு பொதுக்கூட்டமும் பெரிய போராட்டமும் ராஜ்ய கர்மச்சாரி மகாசங்கமும் பாரதிய மஸ்தூர் சங்கமும் இணைந்து நகர்பாலிகா சொஸ்தா கர்மச்சாரி சங்கமும் சேர்த்து நடத்தும் என்று கூறிக்கொண்டு எனக்கு பேச அனுமதித்த இவ்வளவு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் இருக்கும் இந்த சபையில் எனக்கு பேச அனுமதித்த எல்லோருக்கும் எனது நன்றியை நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு, வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது எனது தூய்மை பணியாளராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு எனது உரையை நான் இத்துடன் முடிக்கின்றேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க தூய்மை பணியாளன், வாழ்க அவரது குடும்பம், வாழ்க அவரது எண்ணங்கள் எல்லாம் இனிமேல் உயரத்திற்கு மட்டுமே செல்லும் என்பதை நான் இந்த மேடையிலே ஆணித்தரமாக வைத்துக் கொண்டு நன்றி உரை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री सुब्रमण्यम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं APWD कर्मचारी महासंघ के प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मण जी को स्टेज पर निमंत्रित करना चाहूंगी। भाई बहन, मंच में बैठे हुए अधिकारी, BMS के अध्यक्ष, सभी को, राज्य कर्मचारी अध्यक्ष, सभी को हार्दिक स्वागत और नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन सोचकर के मौका मिला है हमें। ये जो कार्यक्रम जो है हम लोग 15-20 दिन से वर्कआउट कर रहे थे। इतना जो हमारे संख्या था 4,300 का करीब हमारा APWD DRM का संख्या
किया है। मगर आज दुख का साथ ये बताना चाहता है कि ये जो हमारा परिवार में है, आज जो यहाँ है 3 से 4 संघ के लोग हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करता है जो हमारा DRM भाई लोग जो आया है, दूर दूर से आया है, उनको ये जरूर जो किया है, जो सुना है, उनका साथ खड़ा रहेगा। आप नहीं खड़ा हुआ है, आप नहीं आए तो आप पूछने का भी राइट्स नहीं है। इस बात को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 15-20 दिन से हम काम करने के बाद में 4300 में आज लगभग 500 से 700 आदमी जुड़ पाया। कई संगठन हमारा अगेंस्ट में कई कुछ बोलते हुए घूम रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज का दिन जो है 13 फरवरी को यह संघ शुरू किया है, APWD कर्मचारी संघ। आज 1 साल कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा 2 डिमांड था। जो पहला नंबर था बोनस, जो हम 1 साल में अचीवमेंट कर चुका है, उसमें भी प्रशासन हमको अनदेखी करा है। इसीलिए हम लोग का कमजोरी का वजह से ये जो है डिसीजन आया है। चलो यार, आज लक्ष्मण का वजह आया है। आने वाला दिन में आज जो संख्या आया है, इसका 3 से 4 गुना ज्यादा होगा तो हम आगे का कोई भी काम कर सकता है। हमारा जो संख्या है, हमारा जो डिपार्टमेंट में जो है जितना वैकेंट पोस्ट है, वो सभी को 1 टाइम रेगुलर मजदूर का करना है, जो है RM। उसके लिए अगर हम लोग सभी चाहेंगे तो इमीडिएटली होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आप तो 1/3 ले रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा, हमको 1/3 ही दिला। अगर डिपार्टमेंट में पोस्ट है तो हम क्यों रेगुलर के लिए नहीं लड़े। अपने विभाग से अपने मजदूरों की नेतृत्व करते हुए जिन भी अपने नमन करते हुए मैं मंच में बैठी सभी सदस्य का आभार आमंत्रित करती हूँ। मैं डीपरेट के कर्मचारी महासंघ की ओर से आपके सामने कुछ मुख्य समस्या का सामना रखना चाहती हूँ। हमारे डीपरेट में बहुत कर्मचारी महासंघ के बहुत सारी समस्याएं हैं, जो हम लोगों ने काफ़ी बार इस समस्या को हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पत्र द्वारा अवगत किया गया है, मगर लेकिन सब समस्या का कभी हल नहीं मिला है, कोई भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकला। जब से हम इस कर्मचारी महासंघ से जुड़े कुछ समस्या का समाधान हुआ है, जैसा कि TMS को परमानेंट किया गया है और हमारे डिपार्टमेंट में परमानेंट AO नहीं था, आज हमारे बीच परमानेंट AO है, जबकि हमें उनके द्वारा बहुत कुछ जानकारी हासिल किया जा सकता है। हमारे डिपार्टमेंट में हमें कई बार हम लोगों ने पत्र द्वारा सूचित करके बताया गया कि हमें सीनियरिटी लिस्ट दिया जाए। बिना सीनियरिटी के हिसाब से बीच से किसी को भी अपनी मर्जी से अधिकारी अपने प्रमोशन दे देते हैं। जो जूनियर है 5 साल सर्विस नहीं हुआ वो भी उसे प्रमोशन हो जाते हैं, जो 10 साल 15 साल से सर्विस कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं होता। तो जब हम इस महासंघ के साथ जुड़े हैं तब मैम ने प्रमोशन लिस्ट पूछा है, सीनियरिटी लिस्ट पूछा, तब हमें सीनियरिटी लिस्ट मिला। इस सीनियरिटी लिस्ट के वजह से आज बहुत लोग बहुत खुश है, क्योंकि किसी का 2 साल सर्विस बचा है अभी उसे प्रमोशन मिलेगा, किसी का 4 साल सर्विस बचा है उसे भी प्रमोशन होगा। इस वजह से बहुत सारे हमारे कर्मचारी लोग बहुत खुश है और हम कर्मचारी महासंघ की बहुत आभारी है और धन्यवाद करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ग्रुप एंड C पोस्ट का 15% रखा गया है, जबकि हमारे अंडमान निकोबार में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें डिप्लोमा, डिग्री एंड मैरीटाइम कोर्स चलता है। स्टाफ का स्ट्रेंथ आज भी जहां से शुरुआत हुआ था कॉलेज वहीं तक का वहीं सीमित है, स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं बढ़ा है। जबकि हमारे डिपार्टमेंट में MSCP की बात हुई, कितने सालों से MSCP सबकी रुकी पड़ी है। जब MSCP की बात हुई है, कह रहे हैं कि MSCP कहाँ से देंगे, स्टाफ कुछ काम नहीं करता, आकर टाइम पास करते हैं और चला जाते हैं। जब
उनको। हमारे डिपार्टमेंट में एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है, उसे भी एक मिलनेंडर को लिया गया। उनका प्रोविजनल पीरियड जैसे ही खत्म हुआ उसने रिजाइन दिया और चला गया, तो पोस्ट वहीं के वहीं वैकेंट हो गया। अब वो कब भरेगा? खाली का खाली रहेगा। यहाँ इतने इंजीनियर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ वर्कशॉप है, बच्चों को कुछ भी एक्सीडेंट हो, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई मेडिसिन की सुविधा नहीं है। अब इतने साल बाद जब हम लड़के फार्मासिस्ट मंगाए तब एक मिलनेंडर को अपॉइंट किया गया। मिलनेंडर अपना आप आया, 2 साल। भारत माता की जय। मंच पे उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही मंच पे उपस्थित राज्य कर्मचारी महासंघ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, माननीय अध्यक्ष और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही इस पावन अंडमान निकोबार के इस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इस तिरंगा पार्क जो ऐतिहासिक पार्क है, उसमें उपस्थित वो बातें आपके सामने रखूं कि आखिर इस तिरंगा पार्क में इस वक्त इतने तमाम मजदूर साथी, भाई बहने, बड़े संगठन के अधिकारी, इन तमाम लोगों को यहाँ पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज आप अपने शासन से कि हमारे मांगों को सुनी जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप तमाम लोग यहाँ आए हैं, शायद आप लोगों को और भी तमाम काम शायद अपने रहे होंगे, व्यक्तिगत काम, मगर वो उन कामों को, व्यक्तिगत कामों को छोड़ के आज आपको यहाँ पे आना पड़ा, इस तिरंगा पार्क में इकट्ठा होना पड़ा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, पुलिस भाइयों को ड्यूटी करनी पड़ी। ये महत्वपूर्ण काम देने का श्रेय किसको जाता है? ये हमारे प्रशासन के अधिकारियों को जाता है। उन्होंने हमें ये काम दिया। हमें ये बात नहीं समझ आती कि भाई उन्होंने शायद ये कसम खा रखी है कि हमें वो ये काम, स्पेशल काम हमें और पुलिस वाले जो प्रशासन में है और ये व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे और हम अपने शोर मचाएंगे, अपना दुख प्रकट करेंगे। ये जो स्पेशल काम ये इन्होंने सोच रखा है कि हम फाइलों को दबाए रखेंगे, काम नहीं करेंगे और हमारे जो वर्कर हैं वो परेशान होंगे तो उनसे संबंधित यूनियन परेशान होंगे, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकलेगा, जुलूस में लाठी लेके बेचारे पुलिस वाले रोड पे चलते रहेंगे धूप में। और उसी जुलूस की है, हम आपसे पूछेंगे भैया फाइल काय को दबा के रखा हुआ है, उसको ठीक कर दिया होता तो ये जुलूस ही नहीं निकलती। ये मानसिकता है, एसी चेंबर में बैठने के कारण ही ये विकृति आती है। ये भी एक बहुत बड़ी वायरस है जो एसी से निकलता है। पहले एसी बंद करो, उनका टेम्परेचर ब्रेन का नॉर्मल करवाओ। जब ब्रेन का टेम्परेचर अधिकारियों का नॉर्मल होगा तो फाइलें भी पास हो जाएगी। और समझ नहीं आता, ये कोई पिकनिक स्पॉट समझ रखा है क्या अंडमान निकोबार को? 3 साल तफरी करने आते हैं। अरे भाई, आप भी परिवार से जुड़े हैं, आपके भी माँ बाप है, बहनें हैं, तकलीफें उनको भी होती है। जब कुर्सी बड़ी हो जाती है तो नीचे आपको ये डीआरएम, ये मजदूर क्या कीड़े मकोड़े दिखते हैं? साल में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में वो लोग रो रहे हैं, अफसर रो रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। जहां एक और कर्मचारियों की कमी है, आप रेगुलर कीजिए पहले, उसके बाद वैकेंट पोस्ट को फिलअप कीजिए। दरअसल मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, जो हमारा तजुर्बा कहता है, भीतर की बात, भीतर की जो गणित है वो कुछ और ही है।
देखिए आप लोगों को डीआरएम से 1/3 किया जाएगा। आपसे क्या मिलेगा? हमें उनको क्या मिलेगा? पेपर वर्क करना है, ऑर्डर पास करना है, मिठाइयां आप बैठेंगे, उनको क्या मिलेगा? अरे भाई आपको हटा करके अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट, फ्रेश अपॉइंटमेंट करेगा तो कुछ तो मिलेगा। तो ध्यान वहां पे केंद्रित होता है। मुझे ताज्जुब लगता है, आपको याद होगा कि आज भी शायद 3rd या 4th जनरेशन होगा हमारे बीच में जो मौजूद होंगे। एक उपराज्यपाल यहाँ पे अंडमान निकोबार में आए हैं, उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई, ग्राउंड पे उतरे और ताकत दिखाया कि प्रशासनिक अधिकारी के सर्वोच्च पद में बैठने के बाद पावर का इस्तेमाल पब्लिक के लिए, जनता के लिए कैसे की जाती है। जरा गौर कीजिए, आपके बाजू में ही ये चौड़ी सड़क जो देख रहे हैं मेन मार्केट में, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर वक्कम जी के बदौलत बनी थी। उनके ऊपर उंगलियां भी उठी थी, लेकिन आज भी 3rd जनरेशन उनको याद करता है। आप पूछ लीजिए किसी से कि कैसे गवर्नर आना चाहिए, तो तुरंत कहेंगे वक्कम जी की तरह। लेकिन ताज्जुब है, यहाँ पे जब भी कोई ऑफिसर आते हैं, शायद गिने चुने अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, जिनके नाम हमें या हमारे बाद के जनरेशन को याद रखे होंगे, बाकी किसी को कोई याद नहीं रखता है। और इनकी मानसिकता है, हम जब भी मिलने जाते हैं उनसे अनुरोध करते हैं, सर कुछ काम ऐसा कर जाइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनताओं के मन में आप राज करें सदियों तक। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, नहीं करने की मानसिकता है। और आप आवाज उठाओगे तो पुलिस व्यवस्था उनके पास है, दमन की राजनीति है, लेकिन सोच करने की मानसिकता कहीं नजर नहीं आती है। हर एक डिपार्टमेंट में चले जाइए, मजदूरों की काम की कमी है। और कौन यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? पब्लिक, जो हर दिन के काम काज जो उनके रुके हुए होते हैं उसके लिए जाते हैं, वहां उनको कोई ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं, वहां करना है। हर जगह पे मानसिकता है, मैं तभी वो काम हम करेंगे। एक लॉबी की तरह इनका सिंडिकेट बना हुआ, हम वही काम करेंगे जहां से कुछ आने वाला है। अगर वो संगठन कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है, आप एक सवाल पूछिएगा, सर वो कोर्ट के ऑर्डर में लास्ट के पैरा का जो है, हमें कोर्ट डायरेक्शन ऑर्डर है कि नहीं वो दिखाइए। क्या होता है फर्क? क्यों ये कलेक्शन कर लेते हैं और आप मजदूर उसके चुंगल में फंसते हैं? 1000-2000 कलेक्शन दे देते हैं, हजारों के तादाद में, संख्या में। ऐसे लोगों से बचिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट ऑर्डर क्या होता है और मे बी शब्द का फर्क क्या होता है, जिससे प्रशासन और वो डिपार्टमेंट खिलवाड़ करता है। तो बहनों, तमाम लोगों से, आप लोगों से मैं विनती करूंगा, भारतीय मजदूर संघ से जुड़िए, राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़िए, जो हमारे एक्टिव यूनिट है और बहुत ही ज्यादा सक्रिय है इस वक्त में। प्रशासन से जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कर रहे हैं, बातचीत जारी है। और हमें लगता है, उम्मीद है, मुझे भी लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपके सामने आएगा और आप में वाकई में वो भरोसा जगेगा और आप और भारी तादाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय। देश हित में करेंगे काम, देश हित में करेंगे काम। भारत माता की, भारत माता की। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं इस कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट श्री वीराना जी और राज्य कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट श्री जयकुमार जी, स्टेज
स्टेज में उपस्थित सभी अध्यक्ष और मेहमान को नमस्कार। मैं 22-25 साल से टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। मेरे साथ 80 से 100 लोग काम करते थे जब मैं काम में आया था 93 में। तो आप लोगों की तरह सबको DRM में लिया गया था। 93 में भी DRM में लिया गया और उस समय टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार का द्वारा कई प्रोग्राम और कई तरह का स्कीम लाया गया और उस चीज़ को कई जगह उद्घाटन भी किया गया। लेकिन अपॉइंटमेंट सरकारी तौर से अपॉइंटमेंट लोकल लोगों को लेने का कमी आ रही। खाली DRM को लिए, DRM से काम कराए। बाद में जब नौकरी लेने का बारी आया तो DRM को ही रख के सारे यूनिट्स में कोई मैनेजर है, तो कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई टूरिस्ट गाइड है, हाँ, तो कोई बेयरर है, ऐसा लेके सारे काम चला लिए, रिबन काट के नया नया उद्घाटन कर लिए। जब लेने का बारी आता है तो उनका काम को छोड़ के, उनका एक्सपीरियंस को छोड़ के कोई नया तो ले लेता है। तो उस समय हम लोगों ने संगठन किया, लड़ाई की, लड़ाइयाँ लड़ी, जमा हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है पता? हम में है। जो भी चीज हम सरकार से लेते हैं वो कोई हम लोग अपना चीज नहीं मांग रहे। जो भी चीज हम मांग रहे हैं अपना हित के लिए, जो भी चीज मांग रहा है वो ऑलरेडी सरकार का द्वारा घोषित किया हुआ चीज को ही हम मांगते हैं। उसको नहीं देने का कारण हम संगठित नहीं है। हम जब तक संगठित नहीं होएगा उस चीज को नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है, सरकार द्वारा जो भी चीज को घोषणा करता है वो जब किसी मैनेजमेंट के हाथ में आता है तो मैनेजमेंट कितना साल रुकता है वो देखना होता है। मैनेजमेंट में 3 साल या 2 साल के लिए लोग आते हैं। वो मैनेजमेंट करने के लिए जब वो आते हैं, वो 2 साल या 3 साल के लिए आते हैं, उनको टास्क दिया जाता है तो वो टास्क में बिजी रहता है। वो टास्क पूरा करना और वहां में उनको नाम कमाना और उनको निकलना है। हमारा दर्द कौन बताएगा? हमारा तकलीफ कौन बताएगा? सरकार द्वारा जो घोषित किया उसको लेने का किसके पास जाएंगे? हम अगर सरकार का या मैनेजमेंट का सामने एक अकेला जाके बोलेगा, ए तुम्हारा क्या काम है, तुमको DRM में मिला है ना, चुपचाप करो, चुपचाप रहो, आगे होएगा तो तेरे को नौकरी मिल जाएगा, तुम इस तरह आगे लीडरगिरी करेगा तो तेरे को नौकरी नहीं मिलेगा। ये चीज जो है फैलाया गया। हम जब पढ़ते हैं कॉलेज में इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें यूनियन और संघ का बारे में भी पढ़ाया जाता है। उस मैनेजमेंट में जिस तरह स्टैब्लिश स्ट्रक्चर 20-25 साल से अंडमान निकोबार का मैनेजमेंट एकदम चरमराया हुआ है। सरकार भी प्रॉपर काम नहीं करवा पाता है, कारण मैनेजमेंट और वहां पे प्रॉपर संगठन नहीं होने का कारण। जब तक संगठन और यूनियन नहीं होएगा मैनेजमेंट को चला नहीं पाएगा। 20-25 साल से कोई यूनियन नहीं, कोई संगठन नहीं और हम में भी वो सोच नहीं कि हमारा अधिकार, हमारा हित जो सरकार दिया हुआ है वो लेने के लिए भी हम इकट्ठा नहीं हो रहे, जिसका वजह से सरकार में बहुत सारा काम छुटा हुआ है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, एसी कैडर में प्रमोशन नहीं, टीचर एरिया में प्रमोशन नहीं, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई प्रमोशन नहीं। प्रमोशन तो छोड़ो, अपॉइंटमेंट भी नहीं, रिटायरमेंट के बाद में अपॉइंटमेंट भी नहीं। वो तो 3 साल के लिए आते हैं और 3 साल के बाद वो चले जाते हैं। उनको क्या पड़ा है? यहाँ का दर्द बताएंगे कौन? और कुछ एक आध अगर संगठन है भी तो उसको प्रॉपर चलाने वाला भी कोई नहीं है, तो भी उसमें वो यूनियन में धमकीगिरी,
दादागिरी, ड्यूटी करने का बजाय हम यूनियन का लीडर है, हम काम नहीं करेगा, ये तरह का सोच। और उन लोग का अलग, मैनेजमेंट का सोच अलग, इनका अलग सोच। कभी भी मैनेजमेंट और यूनियन और संघ जो भी है वो आपस में एक सिक्के का दो पहलू है, आपस में मिलकर ही रहना है, बात को, मुद्दा को रखना है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 22 साल बाद टूरिज्म में डेली वेजेस में 1/3 पाने के बाद भी किसी को नौकरी नहीं हुआ था। तो मैंने, मेरे साथ के लोगों ने संगठन हुए, कुछ संगठन होने का उनको भी जानकारी था, संगठन हुए और RKMS के थ्रू हम लोगों ने कुछ न्यायिक तौर पे और कुछ मैनेजमेंट के पटल पे लेके गए और आपस में बात करके उस चीज़ को आगे लेके गए। यही होता है मैनेजमेंट और यूनियन और संघ का ताकत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। कि अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार जी आए और अपने उस विचारों को हम सबसे साझा करें। सभी को नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और यहाँ मंच पर बैठे हमारे BMS अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का बहुत अभिनंदन, नमस्कार। एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा है क्या? क्या एनर्जी लेवल कम है आपका? तो जोर से एक नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। तालियों का साथ दिखा दीजिए कि यहाँ BMS राज्य कर्मचारी महासंघ के पूरे योद्धा यहाँ पर है और ये आवाज पूरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना है। कहां तक जाना है? ताली मानिए आप। क्या आप खुश हैं? आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जो महिलाएं जितने भी डिपार्टमेंट से यहाँ पर आए हैं, सब कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं, कुछ ना कुछ उनका सपना ना कुछ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से आप पीड़ित है, शोषित है, आप यहाँ पर इस छत के नीचे आए हैं। सही है कि नहीं? तो मैं पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद से मैं हूँ। मैं यहाँ पर 32 साल सर्विस कर रहा हूँ और मैंने जो इस सालों में मैंने जो देखा है, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो 22 पॉइंट्स का जो हमने आप सभी के हाथ में है, मैं इस सारे डिपार्टमेंट से सारे पॉइंट्स को लेकर ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो शायद उनको सोचना पड़े कि ये दे सकते हैं या इसके लिए। ये सभी चीज़ जो है आज से नहीं, मैं बहुत सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम और आप मांगते हैं या हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ऐसी चीज़ का क्या हमें करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि छोटे प्रमोशंस, DRMs का, रेगुलराइजेशन का, 18,000 या 15,000 के अंदर घर चलाना हो, उस परिवार को चलाना हो। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, बाहर पे भी बैठा होगा, यहाँ पर बैठे हैं, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट है और कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, अपना काम करते हैं देश के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए विश्व गुरु की ओर हम जा रहे हैं। विश्व गुरु हमें बनना है
तो हम सब उसका हिस्सा है, हम सब काम करते हैं। क्योंकि हम पहले भी मैंने यही बताया, बीएमएस राज्य कर्मचारी महासंघ कभी ये सोच नहीं रखता है कि हम आज भी यहाँ पर जो भी आए हैं अपने ड्यूटी करके, अपने कामकाज को करके, कि हमें अपना काम पहले है, सेवा पहले देश का, हमारे वजह से किसी को कोई नुकसान ना पड़े। आप सब अपने काम करके आए हैं, धन्यवाद। और आगे एक विषय मैं और रखना चाहता हूँ साथ ही साथ, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट से आए हैं, मुझे सुनने में आया है कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मेंबरशिप का फॉर्म जब भी भरे तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले कि अगर यहाँ पर कोई मेंबरशिप लेना है, जुड़ना है, तो पहले डिपार्टमेंट में अपना काम को ही प्रमुखता पहले देना है, उसके बाद ही आपका जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये पहले चीज ये ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भर दिया है, मेंबरशिप ले लिया है, RKMS हमारे चत में है, हमारे अंडमान निकोबार कर्मचारी महासंघ, नहीं, हम पहले ऐसे लोगों को लेते ही नहीं इस संघ में जो पहले अपने डिपार्टमेंट, अपने कार्य, अपने देश के प्रति अगर वो उनका सोच विचार ऐसे है, वो ऐसे सोच भी नहीं सकते यहाँ आने कर, ऐसे आए भी मत। दूसरी बात, हमारे मजदूर भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, पहले मैं पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के जो मजदूर भाई बहन बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी दुकान चलते हैं, जितने भी ठेला वाले हैं, फल वाले, जितने भी ऑटो हैं, ये सभी अंडमान में 60 से 70% गवर्नमेंट सर्वेंट है। हमारे वजह से ये सारे दुकान, ये ऑटो, ये जितने फल वाले हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, कार्य करते हैं, हमारे वजह से ही सब दुकान चलता है कि नहीं? ये हम है तो ये है। अब सोच सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे वजह से ही ये जितने भी कार्य, हमारे वजह से उनका रोजी चलता है। तो आज अगर हम परेशान हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारे वर्कर, हमारे कर्मचारी तकलीफ में हैं, सभी को, आप सभी को इसमें सम्मिलित होना होगा, आप सभी को इसमें आगे आना होगा, क्योंकि हमारे वजह से आप है, आपके वजह से हम नहीं। और दूसरी बात, हमारे मजदूर भाई बहन, आज मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। अगर हम साहब, मेरे वर्कर्स झाड़ू लगाते हैं, नालों में उतरते हैं, गलियां सफाई करते हैं, डोर कलेक्शन लेता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करते हैं हमारे वर्कर्स। लेकिन क्या आपके घर पे जो भी वर्कर्स आते हैं, कभी ये शिकायत हमें मिला है कि आपके घर पे जब कूड़ा लेने आता है, आपको बताया गया है, हर घर पे हम बताया गया है, न्यूज़ के थ्रू, समाचार के थ्रू, जो भी पेपर्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, कि आपको कूड़ा अलग अलग करके रखना है। लेकिन घर वाले कूड़ा अलग करके भी, कुछ घर वाले मैक्सिमम रखते हैं 80%। लेकिन हमें शिकायत मिला है कि हमारे वर्कर उसे क्या कर देते हैं, कि शिकायत मिला है कि हम जब अलग करते हैं तो हमारे वर्कर उसे मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? आप कभी सोचा है कि कुछ वर्कर कुछ जगह पर जब हमें शिकायत मिली है, आपने कभी भी शिकायत तो कर देते हैं, लेकिन आपके एरिया पे जो सफाई मित्र आपके पास आते हैं, उनके पास कुछ सुविधा, जब आप अलग करके देते हैं, आपको डस्टबिन दिया गया पीबीएमसी की तरफ से, हमारे वर्कर के पास अलग करने के लिए सामग्री है नहीं। क्या नहीं है? हमारे वर्कर के पास उनको 2 बैग दिया जाना चाहिए, जब भी वो वेस्ट को अलग लेकर उसके बाद वो झाड़ू लगाता है, स्वीपिंग करता है, वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, उसको प्रोटेक्टिव गियर सही तरीका का नहीं मिल रहा है, सही तरीके के उनको ग्लव्स जो मैंडेटरी है, सही तरीका के मास्क जो इंडस्ट्रीज के जो मैंडेटरी जो ग्लव्स होता है, मास्क होता है, उनको जो एप्रॉन्स होता है, उनको जो चाहिए, ये हमारे वर्कर को हर महीने उपलब्ध होना चाहिए, ये उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जब
हम राज्य कर्मचारी महासंघ के छत के नीचे जब पूरे हमारे कर्मचारी जुड़े, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं हर वार्ड पे ये ऑर्डर हुआ है कि आपको अपना प्रोटेक्टिव गेयर्स, अपना रिक्वायरमेंट्स, अपना झाड़ू, अपना बस्ता, हर चीज का आपको महीने का और एक साल का आपको रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं आप। तो ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा, ये बहुत आगे जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उनका घर से है, उनका डीआरएम, उनका रेगुलाइजेशन, उनका 1/3। मैं सिर्फ सैनिटरी वर्कर नहीं, एपीडब्ल्यूडी, आपका एनिम्स का, आपका जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट का, मैं पॉलिटेक्निक से जो आए थे, डिब्रेट से हैं, और आपका आईपीएनटी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, सुनने में आया है कि एसटीएस डिपार्टमेंट भी आज सुनने में आया है कि वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी समस्या है, वो भी लड़ कर थक गए, लेकिन एक छत के नीचे जब मिलकर रहता है तो इसका समस्या होता है। मैं सभी डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिव गेयर्स, मैं एक हादसा बताता हूँ आपको।